تمام حضرات محبت و عقیدت سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ افضل مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتہائی قسم تعظیم و تقریب قابل قدر بزرگ ہو بھائیو مسلمان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعہ کا خطبہ تو واقعہ کربلا کا تھا، لیکن علماء کی طرف سے اور بڑے حضرات کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آج کے جمعہ کے خطبہ کے اندر آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر آپ کے ملک کی عدالتوں نے، آپ کے ملک کے چیف جسٹس نے قادیانیت کے حق کے اندر فیصلہ سنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اسی حوالہ سے تمام بڑے حضراتوں کا یہ حکم آیا ہے، بلکہ قید جمعیت، فخر جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دعوت فیوم اور بھی کافی بڑے بڑے حضرات نے تمام پاکستان کے علماء خطباء کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے تمام امت کو بتاتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بھیجیں، تاکہ ان برطانیہ کے پالتو لوگوں کو، تاکہ ان امریکہ اور انگریز کے غلاموں کو پتہ چلے کہ جب تک محمد کے غلام پاکستان کے اندر زندہ ہیں، خدا کی قسم تمہاری شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں تبدیل ہو جائیں گے، تمہارے باپ تبدیل ہو جائیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، ہر قسم کے گناہوں میں لت پت ضرور ہیں، لیکن خدا کی قسم حضور علیہ السلام سے اپنے ماں باپ اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ قربان کر دیں گے اور بڑے فخر سے کریں گے، سینے چوڑے کر کے کریں گے۔ ہمارے دامن اعمال سے خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم زندگی اس نیت سے گنہگاری کے اندر بسر کر رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوا ہوگا، جس وقت لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ ہم اس امید کے ساتھ جی رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے بارے میں شفاعت فرمانے کے، آپ کی شفاعت کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں اتنی کتاب منسلات سے قرآن کے بغیر حساب کتاب جنت نصیب کر دے گا۔ میرے محترم مسلمانوں، حضور علیہ السلام جس وقت مکہ کی دھرتی پہ آپ کے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام سے نرینہ اولاد ایک ایک کر کے بلوغت سے پہلے اٹھا لی۔ پھر مکہ کے مشرکوں نے یہ بات مان کی، کہنے لگے کہ یہ نبی
میرا مشن ساری کی ساری دنیا پہ عام ہوگا. کہتا ہے میں نے جو نعرہ لگایا ہے اللہ اکبر کا، اللہ ایک ہے، میرا یہ نعرہ ساری دنیا کے اندر سمندر دریاؤں کے اندر گونجے گا. وہ لوگ جس وقت یہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس کی نارینہ اولاد ایک ایک ختم ہو گئی، اس دنیا سے چلی گئی. ایک باپ ہے وہ کسی چیز کا نعرہ لگاتا ہے، کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے، اگر وہ مر جائے دنیا سے چلا جائے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے اس مشن کو، اس کے اس نظریے کو، اس کے اس نعرے کو اس کی اولاد، اس کا بیٹا لے کر آگے چلتا ہے. اس کا وہ مشن، اس کا وہ نظریہ، جس مشن اور نظریے کی ابتدا اس کے باپ نے کی تھی، اس مشن اور نظریے کو اس کا بیٹا لے کر آگے چلتا ہے. یہ محمد کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے. یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لوگوں ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں 360 بت ہیں ان کی عبادت کی جائے، یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے. جس وقت اس کی نارینہ اولاد نہیں ہوگی اس کا مشن آگے لے کر کون چلے گا؟ مکہ کے کافر مختلف میٹنگیں کر کے خوش ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد اس کا مشن بھی مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی باقی نہ رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب کے بارے میں فرمایا اے لوگو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سمجھتے ہو، میں نے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا ہے. تم اس محمد کو قاسم کا باپ سمجھتے ہو کہ قاسم فوت ہو گیا محمد کا دین مٹ جائے گا. میں نے اس پیارے حبیب کو ابو بکر جیسا بیٹا عطا کیا ہے. تم کہتے ہو محمد کا قاسم اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کا دین اور مشن مٹ جائے گا. میں نے اس محمد کو عمر جیسا بیٹا عطا کیا ہے. تم کہتے ہو کہ محمد کا بیٹا کہ قاسم اور ابراہیم چلے گئے، محمد کا دین مٹ جائے گا. میں نے اس محمد کو عثمان و علی جیسے بیٹے عطا کیے ہیں. میرے محترم دوستو، کیونکہ ہم اس نبی کی روحانی اولاد ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ اس امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے. ہم حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں. پھر لوگ کہہ سکتے تھے کہ جناب ابو بکر کے بعد پھر دین مٹ جاتا، شریعت مٹ جاتی، حضور علیہ السلام کا مشن مٹ جاتا. حضرت عمر کے بعد حضور کا لایا ہوا نعرہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کا یہ نعرہ مٹ جاتا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہو جاتی. پھر ہو سکتا تھا لوگ کہہ سکتے تھے جناب عثمان و علی، جناب امیر معاویہ، جناب طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ان تمام صحابہ کرام کم و پیش 1,44,000 صحابہ کرام کے اندر لوگ کہہ سکتے تھے صحابہ کرام کے بعد دین اور نعرہ مٹ جاتا، حضور علیہ السلام کا مشن اور شریعت مٹ جاتی. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اے امت کے لوگوں، میں نے اپنے نبی کو صرف نبی نہیں بنا کے بھیجا، میں نے اسے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، میں نے اسے خاتم الرسول بنا کے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جب تک ان کی امت چلی ان کا دین باقی رہا. حضرت آدم کی امت ختم ہوئی، دین بھی ختم ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے، جب تک آپ کی امت چلی آپ کا دین بھی چلا. حضرت نوح کی امت ختم ہوئی، دین بھی ختم ہو گیا. الغرض کم و بیش 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے. ہر نبی آتا تھا اپنی امت کو کلمہ کی دعوت دیتا تھا، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا تھا، اپنی امت کو اللہ کی پہچان کروایا کرتا تھا. لیکن قربان جو میں اپنے پیارے حبیب پر، اللہ فرماتے ہیں اے امت کے لوگوں، تمام انبیاء کے بعد میں نے ایک دوسرے کے بعد
बाद नबी भेजना होता था, इसलिए उन नबियों का दीन बदलता रहा, इसलिए उनकी शरीयतें बदलती रही, इसलिए उन पे आने वाली किताबों को बदल दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने आखिरी नबी के बना के भेजा, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप पर मैंने नबुव्वत की मोहर लगा के, खत्म नबुव्वत की मोहर लगा के नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अहादीस मुबारका के अंदर फरमाते हैं कि मैं उस आलीशान की महल के मिसल हूँ कि एक आलीशान बहुत बड़ा महल खूबसूरत बनाया गया, उस महल के अंदर एक ईंट नहीं रखी गई। देखने वाले बड़े ताज्जुब से देखते हैं, बड़ा खूबसूरत महल है, जिसने बनाया है बड़ा प्यारा बनाया है, बड़ा पैसा लगाया, बड़ी मेहनत की। फिर जिस वक्त उस जगह को देखते हैं जहां पर एक ईंट नहीं लगी हुई, लोग कहते हैं सारा महल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, लगाने वाले ने बड़ा पैसा लगा दिया, लेकिन अगर ये ईंट लगा देता तो खुदा की कसम महल और खूबसूरत हो जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं उस महल की, उस आखिरी ईंट की मानिंद हूँ जिस वक्त तमाम अंबिया के महल को अल्लाह ने तैयार कर दिया। नबी वक्त बवक्त आते रहे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कमोपेश 1,24,000 नबी आए। फिर वो सारी की सारी वो महल्लात, वो इमारत जिस वक्त पूरी हो गई, वो एक ईंट हो रह गई जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत वाली ईंट थी। फिर जिस वक्त अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस धरती पे मबऊस फरमाकर आपके सर पे नबुव्वत का ताज रख दिया, तो फिर उस वक्त उस महल की वो ईंट मुकम्मल हो गई, वो नबुव्वत वाला महल मुकम्मल हो गया। खुदा की कसम मेरा और मेरे अकाबिरीन उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, अब सारी दुनिया खत्म हो सकती है, आसमानो जमीन फट सकते हैं, ये दुनिया का निजाम खत्म हो सकता है, लेकिन नाया नबी नहीं आ सकता। अब जब नाया नबी नहीं आ सकता, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने इस उम्मत को रूहानी बाप वो अता किया जो खातमुल अंबिया है, जो तमाम नबियों का वारिस नबी है। अब जब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी औलाद हैं, तो फिर हमारे जिम्मे है हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत की भी हिफाजत करें। हमारे जिम्मे है हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई किताब की भी हिफाजत करें। हमारे जिम्मे है हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम की इज्जत और नमूस की भी हिफाजत करें। हमारे जिम्मे है हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मिशन और नजरिया की हिफाजत करें जिस मिशन और नजरिया का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरान की चोटी पे खड़े होकर नारा लगाया था, जिस मिशन और नजरिए के लिए मेरे और आपके प्यारे हबीब को जख्मी किया गया था, जिस मिशन और नजरिए के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने मुख्तलिफ जंगों के अंदर अपने जिस्मों के टुकड़े करा के हुजूर के मिशन और नजरिए की पहरेदारी की थी, हुजूर के मिशन और नजरिए और खत्म नबुव्वत की हिफाजत की थी। मैं बात लंबी चौड़ी नहीं करता। जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आके नबुव्वत का दावा कर चुके, आपने मक्का की धरती पर भी जिंदगी गुजारी, आपने हिजरत करके मदीना के अंदर भी जिंदगी गुजारी। जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल का वक्त आया, मुसलमानों तवज्जो रहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जिब्राइल आ गया, या रसूल अल्लाह इज़राइल आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपको अल्लाह के पास ले जाना चाहता है, अल्लाह आपकी मुलाकात चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त जाने लगे, आपने इस दुनिया को इस हालत के अंदर छोड़ा। आपके जाने के बाद फौरन फितने उठना शुरू हो गए। जो सबसे पहला और बड़ा फितना उठा वो ये कादियानियत का था। जो सबसे पहला और बड़ा फितना उठा वो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे डाका डालने वाले लोगों का था। उस वक्त जिसने इसकी बुनियाद रखी थी उसको मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से आज दुनिया याद करती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद हजरत अबू बकर ने खिलाफत संभाली, हुजूर का मुसल्ला संभाला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद अबू बकर के इब्तदाई दौर के अंदर बहुत सारे फितने उठते हैं, ज़कात के मुनकरीन के फितने उठते हैं, हुजूर की खत्म नबुव्वत पर डाका डालने वाले उठते हैं। फिर सिद्दीक अकबर ने अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए, हजरत अबू बकर ने अपना सिद्दीकी और जज्बा दिखाते हुए हुजूर की खत्म नबुव्वत पे भी पहरेदारी की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सिद्दीकी जज्बा दिखाते हुए हुजूर के मिशन की भी हिफाजत की है, हुजूर के पहले मिशन की पहरेदारी भी की है। जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कलमा की आवाज बुलंद की थी, उस वक्त जनाब अबू बकर सिद्दीक ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार करके मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ने
करने के लिए भेजा था। मुसलमानों गौर करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना के अंदर सहाबा कराम ने मुख्तलिफ जंगें लड़ी। उन तमाम जंगों के अंदर 259 सहाबा कराम शहीद होते हैं। 259 सहाबा कराम तमाम जंगों के अंदर शहीद होते हैं। लेकिन जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत की जंग उठती है, जिसे लोग आज जंगे यमामा के नाम से याद किया जाता है, हजरत अबू बकर के दौर के अंदर वो जंग लड़ी गई। खुदा की कसम, उस एक जंग के अंदर 1200 सहाबा कराम शहीद होते हैं। 700 सहाबा कराम कुर्रा हजरात हैं, हाफिज़ कुरान शहीद होते हैं। सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन हुजूर की खत्म नबुव्वत पे आंच नहीं आने दिया। फिर एक वक्त वो आया जिसने जनाब अबू बकर सिद्दीक ने एक लश्कर रवाना किया। उस लश्कर के अंदर जनाब ज़ैद मौजूद है। जिस वक्त उस लश्कर को गिरफ्तार किया गया, जनाब ज़ैद को गिरफ्तार किया गया, मुसैलमा की दरबार के अंदर लाया गया। मुसैलमा कहता है, तुम सारे के सारे लश्कर वाले अगर मुझे नबी मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा। तुम्हें तुम्हारी औलाद से प्यार नहीं है क्या? बीवियों से मोहब्बत नहीं, माँ बाप से प्यार नहीं, मुल्क और कबीला और जिंदगी से मोहब्बत नहीं? आओ गयूर मुसलमानों, सहाबा कराम के उस जिस्म भरे सहाबा कराम से उस ईमान वाले जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो। जिस वक्त उस जालिम ने ये बात कही, कहता है मैं ये नहीं कहता कि आप हुजूर को नबी ना मानो, मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ हुजूर को भी नबी मानो, मुझे भी नबी मानो। वो अपने इलाके का नबी है, मैं अपने इलाके का नबी हूँ। हजरत ज़ैद फरमाते हैं, ऐ जालिम, एक बार नहीं 100 बार ये जान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबुव्वत पे कुर्बान। ऐ जालिम, तू क्या कहता है? फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान, मेरा खुम्बा कबीला कुर्बान, मुझे हर चीज से ज्यादा हुजूर की खत्म नबुव्वत से मोहब्बत है। तू मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हुजूर की खत्म नबुव्वत पे आंच नहीं आने दूंगा। वो मर्द मुजाहिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक से पड़ा हुआ सहाबी, वो हुजूर का शागिर्द, जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखा था, जिसने हुजूर से तालीम हासिल की थी, जिसने दिन और रात हुजूर के साथ गुजारे थे, जिसका सफर और हसर हुजूर के साथ गुजरा था, वो सहाबी कहते हैं, हरगिज़ नहीं, हुजूर के खत्म नबुव्वत पे डाका नहीं डालूंगा। फिर उस जालिम ने अपना तलवार निकाली, तलवार निकाल के जिस्म के टुकड़े करना शुरू किए। उसने एक बाजू काटा, दूसरा बाजू काटा, फिर एक रान से टांग को काटा, दूसरी टांग को काटा। वो बुजुर्ग, वो सहाबी जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे हैं। वो कहते हैं, इधर आ सितमगर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए। उस जालिम ने आखिरी वार किया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया। फिर जिस वक्त उस सहाबी के बाप उम्मे हबीब को पता चला, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपकी खत्म नबुव्वत का पैगाम लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब की दरबार में गया था, मुझे बताइए या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का क्या बना? सहाबा इकराम खड़े हो गए, तमाम की आंखों से आंसू थे, सहाबा रो रहे हैं। सहाबा कहते हैं, उम्मे हबीब सुन और अपने बेटे की कहानी सुन। तेरा बेटा हुजूर की खत्म नबुव्वत का पैगाम लेकर गया था, उस जालिम ने तेरे बेटे का एक बाजू काटा, उस जालिम ने तेरे बेटे का दूसरा बाजू काटा, उस जालिम ने तेरे बेटे की एक टांग को रान से जुदा कर दिया, उस जालिम ने तेरे बेटे की दूसरी रान को टांग से जुदा कर दिया। तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े होते रहे। खुदा की कसम, वो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे आंच उसने नहीं आनी थी, वो कुर्बान हो गया। उम्मे हबीब अल्लाह के आसमान की तरफ सर उठा के कहता है, अल्लाह, आज मैं तुझसे राजी हो गया। अल्लाह, मैंने अपने बेटे को दूध इसलिए पिला के बड़ा किया था, अल्लाह, मैंने अपने बेटे को इसलिए पाला और पोसा था, मैंने इसलिए हुजूर की गुलामी के अंदर दिया था कि अल्लाह, मेरा बेटा अपने प्यारे हबीब की खत्म नबुव्वत के लिए, अल्लाह, मेरा बेटा तेरे दीन इस्लाम की निफाज की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह, मेरा बेटा तेरे दीन इस्लाम और कलमा ला इलाहा की सरबुलंदी के लिए कुर्बान हो जाए। अल्लाह, तूने मेरे बेटे को अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल किया। अल्लाह, तूने मेरे बेटे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत के लिए कबूल किया। वो भी तो लोग थे कि अपने बेटों को ज़िबा करा के अपनी औलाद को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत पे निछावर करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुसलमानों, दूसरी तरफ मैं हैं, दूसरी तरफ आप हैं, दूसरी तरफ उम्मत मुसलमान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अरबों खरबों के अंदर मुसलमान है, करोड़ों की तादाद के अंदर मुसलमान मौजूद है। मेरे और आपकी मौजूदगी अंदर, मुसलमानों की मौजूदगी के अंदर अल्लाह ने हमें दौलत दी, अल्लाह ने हमें माल दिया, औलाद दी, इज्जतें दी, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ आज हमारे पास मौजूद है। खुदा की कसम, आज अगर किसी हाजी को हज की सआदत मिलती है, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के सदके मिलती है, आज अगर नमाजी मौजूद है, ये नमाज पढ़ना हुजूर की खत्म नबुव्वत के सदके
मिला है। आज अगर मैं और आप अपनी मस्जिदों के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं, खुदा की कसम ये हुजूर के खत्म नबुव्वत के सदके है। मेरे और आपके पास कुछ नहीं है, दामन खाली है। कल क़यामत के दिन हमारी शफाअत होगी, हमारी बख्शिश होगी, हुजूर के खत्म नबुव्वत के सदके होगी। फिर ये कौन है जालिम? ये बरतानिया के फालतू कुत्ते, ये अंग्रेजों के गुलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले मुल्क बनने वाले मुल्क के अंदर हुजूर की खत्म नबुव्वत पे डाका डाले। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, खुदा का तुझ पर लानत हो। ऐ जालिम, तूने हुजूर के खत्म नबुव्वत पे डाका डाला। तूने अपने अंग्रेजों और बरतानिया के लोगों को खुश करने के लिए हुजूर के खत्म नबुव्वत पे तूने डाका डालने की कोशिश की। लेकिन हम ये वाज़े कह देना चाहते हैं, खुदा की कसम, जब तक हमारे जिस्मों के अंदर जान बाकी है, जब तक हमारे खून के अंदर एक खून का कतरा बाकी है, जब तक हम जी रहे हैं, हमारी सांस चल रही है, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान का भी दिफा करेंगे और हुजूर की खत्म नबुव्वत का भी दिफा करेंगे। ये मुल्क भी हमारा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारे हैं। हुजूर की खत्म नबुव्वत का भी दिफा करेंगे, इस मुल्क का भी दिफा करेंगे। मैं देखता हूं मेरे अकाबरीन अल्हम्दुलिल्लाह निकले हुए हैं इस रास्ते पर। कोई माई कलाल काजी फैज ईसा क्या, इसके अबौ अजदाद भी कब्रों से उठ के आ जाए, हुजूर की खत्म नबुव्वत के अंदर तारीफ नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह एक नहीं हम लाखों करोड़ों जाने हुजूर की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान कर देंगे। वो वक्त बताएगा, फिर पता चलेगा। मैं देखता हूं कौन है जो अकाबरीन उलमाए देवबंद के सामने खड़ा हो सकता है। आज मेरे अकाबरीन ने ललकारा हुआ है, अभी जुम्मा के अंदर पूरे मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज के लिए तमाम हजरात निकलेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का सबूत देने के लिए। मैं कहता हूं इनको लग पता जाएगा कि ये कौन होते हैं हुजूर की खत्म नबुव्वत के अंदर डाका डालने वाले। ये कानून ऐसे पास नहीं हुआ, मैं और आप सुन लेते हैं। इस कानून के लिए खुदा की कसम सैयदन व शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इक्तदा के अंदर, उनकी सिपा सलारी के अंदर, लाहौर के अंदर 10,000 नौजवानों ने जामे शहादत नोश की है। यह कानून ऐसे नहीं बना था, मेरे अकाबरीन ने मुख्तलिफ किस्म की अज़ाइम और तकलीफें बर्दाश्त की करके अपने आप को कुर्बान करके यह कानून बनवाया था। ऐ जालिमो, ऐ अंग्रेज के पिट्ठू लोगो, ऐ अंग्रेज के पैसों पे पलने वालों, ये मेरी बात अपनी जहन नशीन कर लो। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए देवबंद को ये मौका अता किया है। मैं आखिरी बात कह के खत्म करता हूं कि जो भी तुम कोशिश करो हुजूर की खत्म नबुव्वत पे डाका डालने की, कुरान के अंदर तारीफ करने के, सहाबा इकराम की इज्जत और नबूस पे डाका डालने की, कुरान के अंदर और दीनी निसाब के अंदर तब्दीलियां लाने की, मदारस के अंदर निसाब तब्दील करने की कोशिश करने वालों, अपनी कान की खिड़कियां खोल के सुन लो। रब्बे मोहम्मद की कसम, अल्लाह ने अकाबरीन उलमाए देवबंद को चुना है। अब आओ मुख्तलिफ मैदानों के अंदर आप जाओ और उनका विजिट करो, आपको पता चलेगा। अगर बात तबलीगी जमात की आती है, अल्लाह ने मौलाना इलियास साहब दावत तबलीग को आम करने वाला उलमाए देवबंद को दिया था। अगर बात खत्म नबुव्वत की आती है तो 7 सितंबर सन 1974 को कादियानियत को काफिर करार दिलाने वाला मुफ्ती महमूद देवबंदी था। अगर बात जिहाद की आती है तो अफगानिस्तान की सरजमीन पर काफिरों को, अंग्रेजों को, अमेरिका के पिट्ठू को, अमेरिका को अगर कोई दौड़ाने वाला नजर आता है तो वो मुल्ला उमर देवबंदी था, उसामा बिन लादेन देवबंदी था। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए देवबंद को चुना है। फिर जिस वक्त पाकिस्तान के बनने के बाद काफी अरसा गुजरा, फिर वो वक्त आया जिस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पर सहाबा इकराम की इज्जत और नमूस पे डाके डाले जा रहे थे, सहाबा इकराम की इज्जत और नमूस को गली और कूचों के अंदर उछाला जा रहा था, तो फिर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन जंग से हक नवाज जंगवी को चुना। वो हक नवाज जंगवी, वो मर्द कलंदर उठा, उसने, उसकी सोच ये थी, उसकी फिक्र ये थी, जो भी जुबान मेरे सहाबा के खिलाफ उठेगी उस जुबान को हम कुत्ती से खींच के कुत्तों के सामने डाल देंगे। उस मर्द कलंदर की सोच ये थी, जो तहरीर,
जो कलम और हाथ हुजूर की खत्म नबुव्वत और सहाबा की इज्जत और नमूज के खिलाफ उठेगा, हम उन हाथों को तोड़ के रख देंगे, हम उन कलमों को तोड़ के रख देंगे। आज भी इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद के ये रूहानी फर्जंद जिंदा हैं। हम वादा करते हैं, हम ये अहद करते हैं, मुसलमानों दोनों हाथ खड़े होके अल्लाह के घर के अंदर बैठ के मेरे साथ ये वादा करो, अल्लाह की जात देख रही है, ये बाबरकत वक्त भी है, बाबरकत दिन भी है। दोनों हाथ खड़े करके अल्लाह के सामने ये वादा करो, अल्लाह जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान मौजूद है, जब तक हमारी जिंदगियां मौजूद है, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, औलाद सिबा होती करवा देंगे, बीवियां बेवा होती करवा देंगे, माँ बाप में सहारा छोड़ने पड़े छुड़वा देंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम की इज्जत और नमूज का दिफा करते रहेंगे। तमाम हजरत इस नियत से मैं नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब देना है कि इस नारे की वजह की से कल क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत हमें नसीब होगी। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, अनाफिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत है।